Hello, Assalamu alaikum, healthcare professionals. Welcome back to virtual webinars, part 2 of the drug and antidotes. I am your pharmacist, Maryum Sehrish. My name is Maryum Sehrish. So today we will discussing about the part 2 of the drug and antidote webinar. So पहले हमने पढ़ा कौन कौन से जो है वो एंटीडोट्स हैं, उनकी लिस्टिंग क्या है, कौन कौन से एंटीडोट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, इसेंशियल एंटीडोट लिस्ट कौन कौन सी हमने है वो पढ़ी, उनको याद करने की निमोनिक्स क्या है वो हमने पढ़ी। फिर हम पढ़ रहे थे कि पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट्स क्या होते हैं, एंटीडोट के टाइप्स, उसके मैकेनिज्म, ये सब हमने बहुत डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ा। तो आज इस वेबिनार के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे एंटीडोट्स होते हैं उनकी क्या ब्रांड्स हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं, उनकी क्या क्या यूजेस हैं, उनकी क्या क्या टॉक्सिसिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एंड लाइक दिस एंड दिस। सो चलिए आज का पार्ट 2 जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं 5th of March. So but before this starting this lecture, I will request you to kindly don't forget to mark your attendance in the comment section. Don't comment in the chat box. Answer your questions with your name in the comment section, and then your attendance will be considered. Otherwise your attendance will not be considered. And I would like to start this lecture now. But before this, I would like to thank you guys for helping me achieving 1200 subscribers and huge watch time. Thanks for supporting and motivating us to work the well-being of the healthcare system of the Pakistan. But once again, welcome to Pakistan Pharmacist Virtual Webinar Series and Ambassadorship Program to excel and motivated students, especially pharmacist community, to become legally qualified and highly competent pharmacist. So I would request you to kindly support me because we didn't जो है वो get paid for this. We are doing this for your services. So I would request you to kindly support my efforts by subscribing to my channel and watching this video complete and sharing this to your community, and follow me on the WhatsApp by the link is in the comment section and in the description, and subscribing to my channel, and follow me on the Insta and Facebook with the name of within my Insta page name is Pharmacist Maryum, and also like our Facebook page Pharmacist Maryum and our community group. And we also provide paid courses with the help of you. If you need any paid courses with us, if you have any facing any difficulties in your studies and exams, we also offer paid courses that are customized according to your needs. So we can also do this. We also offer this. We have started this now. We have different trainers and tutors that will teach you according to the medical and your customized needs. So channel without any delay, आज का lecture start करते हैं. Don't forget to subscribing to Akshay Pharmacist Maryum and comment, and don't forget to answer the queries that are pinned in the comment section to mark your attendance for to get qualified for the certificate. चलिए start करते हैं ड्रग एंटीडोट्स एंड टॉक्सिसिटीज का पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा वो हमने देख लिया. अब हम पार्ट 2 में इसको देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीडोट्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उनके जो टाइप्स हैं, एंड उनकी जो पूरी प्रोफाइल है वो. एंड इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 जो होगा इट वुड बी सोली ऑन द टॉक्सिकोलॉजी एंड टॉक्सिसिटीज. ड्रग टॉक्सिसिटीज कैसे कोस करती हैं, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. अभी तो हमने जो पढ़ा वो हमने मेजरली ड्रग एंड देयर एंटीडोट्स पढ़ा. इसके इंशाल्लाह पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम इसको एक्सटेंसिव लेके जाएंगे, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया एंड देन व्हेन आई स्टार्ट डूइंग रिसर्च एंड प्रिपेयरिंग लेक्चर फॉर इट, then I came to know that this is a topic that is not possible to cover in just 2 webinars. We have to conduct 3 and 4 webinars on this. So stay tuned for the 3rd and 4th webinar series of this same drug antidote and toxicities. You don't have to register again. Would be you would be qualified for the certificate and the attendance of the webinar. It's just totally free. It's not paid. तो चलो start करते हैं आज का lecture. Kindly subscribe to my channel Akshay Pharmacist Maryum. Follow me on Insta and like my Facebook page. You can also follow me on the WhatsApp. So चलो start करते हैं. But before मैं आपको थोड़ा briefly बता दूं कि antidotes होते क्या हैं. So according to the definition of antidotes are defined as the therapeutic substance that counteract the toxicity of any xenobiotic.
Xenobiotic can be any chemical, any drug, any poisonous substance. It can be anything that is dangerous and that is harmful for our body. And antidotes reduce the overall burden of the healthcare system, because if our specific antidote is available, we don't have to go for a number of the supportive therapies to treat that poisoning case. So अगर एक specific antidote is available, so we don't have to get tensed about. So antidotes अगर हम देखें तो they can be come with a supportive therapy and a current antidote to increase the chances of the patient survival and their life after the poisoning. So अगर हम antidotes की बात करें तो इसकी management demands a lot of struggle. You have to follow a do's and don't प्रोफाइल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक पेशेंट जो है वो इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल पॉइजनिंग के केस के साथ आया है, सो यू हैव टू प्रोवाइड दी फर्स्ट स्टेप की आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द पॉइजन. यू हैव टू टेक द पेशेंट हिस्ट्री, देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये पेशेंट जो है वो किस जो है वो पॉइजन की जो है वो टॉक्सिसिटी के साथ आया है. पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि आइदर कोई घर में कोई पॉइजन है या फिर पेशेंट कोई स्पेसिफिक पॉइजन खरीदा या फिर कोई चीज ऐसी अवेलेबल है जो कि इनहेल करने से या इन टच करने से भी टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग कोज कर सकती है. सो यू एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू हैव टू आइडेंटिफाई द cause of the poisoning, because you can't do hit and trial on the patient, because the patient is when he's coming without poisoning, his life is in danger. It's have to decide it within minutes and within hours. So you have to decide quick. You have to take the history, and you have to identify the cause of the poison, and you have to either provide the patient emergency medical assistance, and with that अगर पेशेंट सुसाइडल के साथ आया तो आपने आफ्टर दैट आपने पेशेंट को जो है वो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी प्रोवाइड करनी है to avoid counseling and to prevent further suicidal and poisoning conditions. And you have to determine क्या quantity उसने poison की ली है और क्या nature of the poison है. For example, अगर वो narcotics लेकर आता है, आप उसको naloxone की vials देंगे 14-15, डिपेंड कि वो कितनी नार्कोटिक्स लेकर आया है, बार्बिट्रेट्स है, उसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, उसके लिए आप उसको सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे. अगर वो बेंजोडिazepine के साथ आया तो फ्लूमाजिनिन देंगे. और अगर वो फॉर एग्जाम्पल पैनाडोल के साथ आया है, उसकी टॉक्सिसिटी के साथ आया है, उसका लीवर किडनी डैमेज है, तो आप देखेंगे कि उसने कितनी जो है वो टैबलेट्स ली हैं. क्या उसने 24 जो हमारी थ्रेशोल्ड है 24 टैबलेट्स ली हैं, दैट इट इज द थिंग दैट ये पेशेंट जो है वो पैनाडोल की टॉक्सिसिटी के साथ आया. हम उसको एन-एसिटाइलसिस्टीन देंगे, दैट इज द एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल एंड पैनाडोल. तो जो कि तकरीबन 10 to 12 ग्राम ऑफ द पैनाडोल बनता है. तो उसकी हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है, इट डिपेंड ऑन द एक्सपोजर टाइम, इट डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट, डिपेंड अपॉन द पॉइजन, कौन से टाइप ऑफ पॉइजन इसने लिया है. It is narrow therapeutic, it is broad therapeutic, it's fastly acting, it's slowly acting. क्या क्या इसके स्टेप्स होंगे, किस तरह इसकी प्रोग्रेसिव पॉइजनिंग हमें उसके साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे, उसको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, उसकी नेचर क्या है, उसकी टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइप ऑफ एक्सपोजर कितना है उसकी बॉडी में. उसने 1-2 घंटे पहले लिया है या उसने 4-5 घंटे पहले लिया है, उसने 1-2 दिन पहले लिया है, उसने कितनी क्वांटिटी में लिया है. तो these are the first initial things you have to know before starting the management of the poisoning. फिर आपने एक्सपोजर देखना है, फिर आपने देखना है कि पॉइजन अब्जॉर्प्शन रिडक्शन कैसे करनी है आपने, या उसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉइजन वो कैसे आपने इंटरवीन करनी है. सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी आपने देखना है कैसे होगा, और आपने क्या डूज एंड डोंट करनी है इन द मैनेजमेंट. ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट जो है वो पॉइजनिंग के साथ आया, आपने डिटरमाइन विद हिस्ट्री किया है कि तकरीबन पेशेंट 6 घंटे पहले पॉइजन लेकर आया है, तो यू हैव टू सी दैट कि पहले आप उसको एंटीडोट देंगे या पहले आप उसको सिस्टमिक लवाज या फिर सॉरी उसको आप बाउल इरिगेशन या फिर स्टमक लवाज प्रोवाइड करेंगे. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट. The other it would be in term of the drug exposure, drug toxicity and उसकी physiological condition क्या है पेशेंट की. अगर वो 14 टैबलेट्स लेकर आया है मगर वो 30 मिनट के अंदर अंदर आ गया, तो यू हैव टू प्रोवाइड द गैस्ट्रिक लवाज. बट इफ इन द केस द पेशेंट इज कमिंग with the 14 tablets same condition but he is coming after 6 hours and you have you know कि 6 घंटे के अंदर जो टैबलेट्स हैं वो डिसोल्व डिसइंटीग्रेट होकर अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है उनकी, एंड दे मस्ट बी इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन. So you have to also intervene the systemic things and you also have to intervene the gastric thing. तो आपको उसको पहले जो है वो एंटीडोट प्रोवाइड करना पड़ेगा सिस्टमिकली यानी आईवी एंटीडोट, और फिर आपको उसका गैस्ट्रिक लवाज और चारकोल वगैरह भी करना पड़ेगा ताकि फर्दर जो भी स्टमक में अगर स्टिल कोई टैबलेट्स वगैरह पड़े हैं तो वो फर्दर एब्जॉर्ब ना हो. तो दीज आर दी डूज एंड डोंट्स एंड द ऑर्डर ऑफ द मैनेजमेंट, एंड यू हैव टू डिफर द टेक्निक. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है वो स्नैक बाइट के साथ आया, तो अगर
स्नेक ने उसको बाइट किया है, बट यू डोंट नो दैट आइदर द स्नेक इज पॉइजनस और नॉट, फिर भी आपने उसकी जो एरिया था उसकी सिस्टमिक ड्रग सर्कुलेशन या फिर पॉइजन सर्कुलेशन के लिए आपने उसके हाथ को बांध दिया है, बाइट किया स्नेक ने, और दैट इज स्नेक इज नॉट पॉइजनिंग, आपने स्टिल कहा दिया, तो बट द पेशेंट वुड नॉट डाई विद द पॉइजन बिकॉज द स्नेक इज नॉट पॉइजनिंग बट पॉइजनस, बट क्योंकि आपने उस जगह की ब्लड सप्लाई रोक दी है, तो माइट बी पेशेंट का जो वो लिम्ब है या जहाँ पे उसने कट किया है वो निक्रोसिस या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से डैमेज हो जाए। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, level of poison, nature of the poison, and time for the ingestion and the exposure of the poison and quantity कितनी है उसकी। And आप फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट जो है वो एसिड पी कर आ गया है, तो यू डोंट हैव यू नो दैट द पेशेंट के म्यूकोजा जो है वो डैमेज है, आप उसको गैस्ट्रिक लवाज नहीं दे सकते। क्यों? गैस्ट्रिक लवाज देंगे, उसकी ऑलरेडी म्यूकोजा लाइनिंग जो है वो डैमेज्ड है। अगर आप उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उसकी इंटेस्टाइन उसकी जीआईटी ट्रैक में डालने की कोशिश करेंगे, तो इट कैन लीड टू द परफोरेशन ऑफ इट्स जीआईटी ट्रैक, तो इट वुड बी मोर डेंजरस, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो शायद टाइम के साथ उसकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज हील हो जाए, बट परफोरेशन वुड बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, पेशेंट सेप्सिस में चला जाएगा, उसका फूड उसकी बॉडी कैविटीज में जाएगा, इट विल मोर डेंजरस। तो आपको ये देखना है कि आपने पेशेंट को किस कंडीशन के साथ आए और आपने इसे कैसे मैनेजमेंट करनी है, यू हैव टू डू दिस वेरी वाइजली। आगे आ जाती है पेशेंट लवाज या पेशेंट को एमएसएस करवानी है या नहीं, इसमें भी आपने पेशेंट को देखना है। अगेन पेशेंट अगर जो है वो आप उसको पेशेंट अनकॉन्शियस है ड्यू टू द पॉइजनिंग कंडीशन, अगर आप उसको गैस्ट्रिक लवाज प्रोवाइड करेंगे इट वुड बी गुड थिंग, बट अगर आप उसको एमएसएस करवाएंगे तो नो, इट इज नॉट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर आप एक अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है वो एमएसएस करवाते हैं, उसको इंड्यूस एमएसएस करवाते हैं, वोमिटिंग करवाते हैं, तो जरूरी नहीं है वो इनहेल भी कर सकता है अपने वोमिटिंग को, और इट कैन कोज टू न्यूमोथोरैक्स इन्फेक्शन। सो पेशेंट टेकन सेडेटिव क्वांटिटी सीएनएस डिप्रेशन लिया, आप उसका इलाज करेंगे, आप उसको जो है वो उसकी जो है वो उसको एमएसएस नहीं करवाएंगे, क्योंकि इट वुड लीड टू द चांसेस ऑफ द एस्पिरेशन, एंड द एस्पिरेशन इन्फेक्शन पेशेंट जो है वो और डेंजरस की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी ड्राउजी है। तो इस कंडीशन में या तो आप पेशेंट को जो है वो गैस्ट्रिक लवाज दे दें, या फिर पेशेंट को एक्टिवेटेड चारकोल दे दें, पहले लवाज करें फिर एक्टिवेटेड चारकोल दे दें, दैट वुड बी द स्टेप ऑफ द इंटरवेंशन। फिर हम देखते हैं आयरन टैबलेट से, अगर हम बात करें आयरन पॉइजनिंग की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने आयरन पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा कर ली है फ्रॉम द स्टमक, तो अब उसकी आपने सबसे पहले क्या करनी है, उसकी अब्जॉर्प्शन मिनिमाइजेशन, आपने उसकी सिस्टमिक जो एंटीडोट होगा प्रोवाइड करना। तो स्टमक में फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट जो 4 आवर्स के अंदर अंदर आया, तो आप उसको गैस्ट्रिक एम्पटी करेंगे आयरन टैबलेट्स की, उसकी गैस्ट्रिक रिटेंशन जो है वो डिक्रीज करेंगे, ताकि उसकी आप कोई लेक्सेटिव दे सकते हैं, कोई परगेटिव दे सकते हैं, कोई एमेटिक एजेंट दे सकते हैं, कोई काइनेटिक एंड डायनामिक देख लेंगे ड्रग की क्या काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी हम एंटीडोट या कोई भी इंटरवेंशन दे सकते हैं पेशेंट को, एंड टू डिसाइड that what is the better management for that specific patient, because poisoning, every poisoning condition is a specific thing, and you have to manage every poisoning condition in a specific way. So iron tablets में इन जो है वो पहले आप उसको एक्टिवेटेड चारकोल नहीं देंगे, बिकॉज इन द केस ऑफ द हैवी मेटल पॉइजनिंग जो है एक्टिवेटेड चारकोल उसके बाद बाइंड नहीं करता, तो इट इज टोटली यूजलेस। तो आप क्या करेंगे, उसको गैस्ट्रिक लवाज देंगे, बिकॉज गैस्ट्रिक लवाज इज समथिंग बेटर फॉर दैट पेशेंट, एक्टिवेटेड चारकोल बाइंड ही नहीं करेगा तो उसको देने का फायदा ही नहीं है। अगेन हम देखते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पैनाडोल पॉइजनिंग की। एक पेशेंट आया और ही इज विद दी पैनाडोल पॉइजनिंग, 1 से 2 घंटे के अंदर वो आ गया है, तो आप उसको एक्टिवेटेड चारकोल से ट्रीट कर सकते हो, बट इफ द पेशेंट इज कमिंग आफ्टर 1 to 2 आवर्स, विद इन 1 आवर आ गया, तो फिर तो एक्टिवेटेड चारकोल से पेशेंट की ट्रीट हो सकता है, बट आफ्टर द 1 to 2 आवर्स यू कांट प्रोवाइड ओनली गैस्ट्रिक लवाज ऑल्सो विद द एक्टिवेटेड चारकोल। पहले आप उसको गैस्ट्रिक लवाज देंगे, चारकोल जो है वो आप तकरीबन देते हैं 1 ग्राम देते हैं, तो इट वुड बाइंड मैक्सिमम 10 ग्राम ऑफ द पैनाडोल या पैरासीटामोल, सो इट वुड नॉट बाइंड टू द 100% ऑफ द ड्रग। सो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, या तो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या इंड्यूस जो है वो एमएसएस करवानी पड़ेगी, एंड इन द सेकंड केस आप उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब उस पेशेंट के डालकर, आप अनकॉन्शियस पेशेंट या कॉन्शियस पेशेंट दोनों केस में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के आप उसको गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक लवाज में क्या करते हैं, 50-100 cc 40 cc जो है आप या 50 ग्राम जो है वो नॉर्मल सलाइन पेशेंट के अंदर सिरिंज के साथ डालते हैं उस एनजी ट्यूब से, और देन उसको सक बैक कर लेते हैं अनटिल के पेशेंट का स्टमक जो है वो प्रॉपरली
क्लियर आउट हो जाए। इसके अलावा आप पेशेंट को आफ्टर लिवाज एक्टिवेटेड चारकोल दे दें, कोई भी लैक्टोबोर हो तो उसके साथ वो बाइंड कर जाए। सो फर्स्ट गो फॉर द लवाज एंड देन गो फॉर द एक्टिवेटेड चारकोल। अगर टैबलेट्स जो है उसमें भी हमने इसकी देखनी है कि क्या क्या स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं, उसकी डेफिनेटिव एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ द पेशेंट्स कम विद द टैबलेट्स, तो हमें देखना है कि आइदर द पेशेंट जो टैबलेट उसने ली है उसके लिए गैस्ट्रिक लवाज काम करेगा भी या नहीं करेगा, या उसके लिए हमें उसका बाउल इरिगेशन या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट इज टेकिंग विद इंटेरिकोटिन टैबलेट, या उसने कोई मल्टी लेयर टैबलेट ले लिया है, तो उसके लिए इंटेरिकोटिन के लिए हम उसको पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल देंगे, यानी हम उसका होल बाउल इरिगेशन या उसका एनीमा करेंगे, या हम उसको लेग्जेटिव देंगे अगर उसने मल्टी लेयर ड्रग्स लेनी है, लेग्जेटिव परगेटिव देंगे फॉर दी पॉसिबल थिंग्स। और इन द केस अगर आप उसको उसका नीमा भी नहीं कर सकते, आप उसको परगेटिव भी नहीं कर सकते, आप उसकी सर्जिकल करेंगे। फिर इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या करेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल इफ द पेशेंट हैज टेकिंग द लेड बैटरीज, और आप बॉल इरिगेशन या फिर लवाज से वो रिमूव नहीं कर सकते, स्टमक वॉशिंग से आप वो रिमूव नहीं कर सकते, तो देन यू हैव टू डू द सर्जिकल इंटरवेंशन। क्योंकि अगर लेड जो बैटरी उसने खाई है फॉर एग्जांपल, तो इट कैन बी डेंजरस, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगी, डिफ्यूज होगी, तो आपने लेड उसकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही सर्जिकली उसकी बॉडी से रिमूव कर लेना है, क्योंकि वो भी उसकी बॉडी में जाके हार्म कर सकती है। एक्सरे से आप लोकेट करेंगे कि कहाँ पे वो स्पेशल टैबलेट्स या फिर वो स्पेसिफिक पॉइजन है, देन आप उसको सर्जिकल इंटरवेंशन से भी रिमूव कर सकते हैं। एंड डोंट वेस्ट टाइम ओवर द यूजर्स मैनेजमेंट, यू हैव टू डिसाइड वेरी क्विकली कि क्या चीज़ पेशेंट के लिए अभी बेस्ट काम करेगी। You have to decide कि without wasting time of the patient and the healthcare professionals, आपने within short period of time आपने best management provide करनी है for that patient। and then comes the mechanical blockage केस में आपने सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड वेरी क्विक। चारकोल जो है वो केमिकली इनर्ट है, सिस्टमिकली इनर्ट है, तो यू हैव टू ऑल्सो से कि अगर एक पेशेंट जो है वो गट परफोरेशन या फिर एसिड या फिर क्रिसिस सब्सटेंस लेकर आया है जिसमें उसका मुख्य ज्यादा डैमेज है, उस पेशेंट में भी आप चारकोल यूज नहीं करेंगे, बिकॉज चारकोल या फिर जो पेशेंट जीआईटी अल्सर के साथ है या फिर उसको कोई भी अल्सरेशन हुई है उसकी जीआईटी पोल में, उसको भी आप चारकोल नहीं देंगे। जो चारकोल विल आइदर इनर्ट है, आइदर केमिकली इनर्ट है, इट्स नॉट टॉक्सिक, बट स्टिल वहां पर जाके वो ब्लॉकेज कॉज करेगा, इट विल बी द बिगेस्ट ब्लॉकेज, और वो परमानेंट ब्लॉकेज कॉज करेगा। क्योंकि अगर आप सिंपली स्टमक में दे रहे हैं चारकोल, इट वुड बाइंड विद द पॉइजन, इट वुड बाइंड विद द टॉक्सिन एंड देन इट विल रिमूव टू द स्टूल। बट अगर वो वहां पर म्यूकोजा के साथ बाइंड कर लेता है, तो इट वुड ब्लॉक एंड इट विल बी द परमानेंट डैमेज फॉर दैट। सो you have to see the things, you have to decide very quickly। एंड आगे आ जाता है कि आपने अगर पॉइजन लिया है तो आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। सो मैनेजमेंट में आपने देखना है कि पेशेंट को आप कौन सा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सा डेफिनेट एंड कौन सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक में बात करें तो डेफिनेट ट्रीटमेंट उसका कोई एंटीडोट होगा। स्पेसिफिक क्या हमें एंटीडोट होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीडोट देखनी है कि क्या वो एंटीडोट जो है वो इजीली अवेलेबल है, या हमें वो मंगवाना पड़ेगा और वो एंटीडोट कितने दिनों में हमारे पास आएगा, तब तक पेशेंट बचेगा भी या नहीं। ये सब चीजें आपने कंसीडर करनी है। अगर वो नहीं है, फिर आपने पेशेंट को सपोर्टिव या पैलिएटिव थेरेपी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इट कुड बी लाइक पॉइजन एब्जॉर्प्शन मॉनिटरिंग करनी है अपनी, मिनिमाइजिंग करनी है पॉइजन एब्जॉर्प्शन को, या एलिमिनेशन करनी है। पॉइजन एलिमिनेशन उसकी बढ़ानी है पेशेंट की, कि पॉइजन उसकी बॉडी से जल्दी रिमूव हो जाए या उसकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब ना हो, या आपने उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को उस ड्रग पॉइजनिंग की वजह से सीजर स्टार्ट हो गए हैं, तो अब आपने उसको डियाजेपिन देनी है, डेजिपैम देनी है, ताकि उसके जो सीजर्स हैं, उसको जो झटके लग रहे हैं, वो आप उसकी सिम्टम्स को ट्रीट करें, because the seizures would be quite damaging। पॉइजन अब्जॉर्प्शन मिनिमाइजेशन में आप फॉर एग्जांपल अगर हम टॉपिकली बात करें, तो अगर टॉपिकली ही उसकी वजह से उसको कोई जो है वो पॉइजन या एक्सपोजर हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल आप उस एक्सपोजर को रिमूव करेंगे। कपड़े से कोई पॉइजनिंग हो रही है, कोई केमिकल कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है, आप उसको रिमूव करेंगे, वॉश आउट करेंगे, एंड देन इस बिकॉज ऑफ एनी इनहेलेशन, तो आप उस जगह से दूर जाओगे। इफ इट्स ड्यू टू एनी ओरल पॉइजन, तो आप क्या करोगे, चारकोल दोगे ताकि उसके अब्जॉर्प्शन कम हो, गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हो, आप उसको एमएसएस इंड्यूस करवा सकते हो, आप उसकी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पैग से आप उसकी होल बाउल इरिगेशन कर सकते हो, उसका नीमा कर सकते हो, उसको कोई लेक्सेटिव परगेटिव या उसको कोई कैथार्टिक दे सकते हो।
इसके अलावा आप 6 में आप उसकी कोई सर्जिकल रिमूवल कर सकते हो उस पॉइजनस सब्सटेंस की। उसके अलावा आप उसकी डाइल्यूशन कर सकते हो। अब डाइल्यूशन जिन केमिकल्स के साथ करनी है उसमें भी आपने देखना है कि डाइल्यूशन के लिए भी जो आप केमिकल यूज करेंगे दैट आर बेटर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूशन में आप जो एक्सलेंट डाइल्यूशन डाइल्यूटिंग एजेंट है वो मिल्क है, और वीक एसिड और बेसिक कंडीशन में भी आप जो डाइल्यूट है वो किसी वीक एसिड बेसिक KMnO4, ये बहुत वाइडली यूज होता है, ऑयल यूज होता है। इसके अलावा आप न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो या नहीं? न्यूट्रलाइजेशन आप कभी भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैज टेकन एनी कोरेसिव बेस एंड एनी कोरेसिव एसिड, तो आप उसमें न्यूट्रलाइजेशन नहीं करोगे। पेशेंट अगर एसिड पीकर आ गया है, इट वुड बी वेरी अनवाइज एंड वेरी एक पागलपन होगा कि आप उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए कोई बेस पिला दो। तो बेस इज ऑल्सो करेक्ट, यू वुड नेवर डू दिस बिकॉज you know the neutralization reaction is an exothermic reaction and the patient जो है वो with और हमें पता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। तो पेशेंट का जो सबसे पहले तो क्या होगा, पेट गर्म हो जाएगा, the neutralization reaction will happen and the patient का स्टमक फट जाएगा। पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है उन गैसेस की वजह से फट जाएंगी। तो कभी भी पेशेंट को एसिड या बेस पी कर आता है तो कभी भी आप उसको एसिड या बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए उसकी ऑपोजिट थिंग बेस या एसिड नहीं देंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो डेंजरस। ऑलरेडी पेशेंट एक जो है वो क्रेसिस सब्सटेंस लेकर आया है, ऑलरेडी उसकी कमी को डैमेज है, उसके बदले आपने उसको एसिड या बेस दोबारा पिला दिया तो इट वुड बी द डबल डैमेजिंग थिंग। उसके लिए आप कोई डाइल्यूशन दे सकते हैं, डाइल्यूशन विद लाइक मिल्क। मिल्क इज अ गुड थिंग। आप उसको कोई ऑयल दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। आप उसको कोई KMnO4 दे सकते हैं, इट्स ऑल्सो गुड थिंग। बट स्टिल इट डिपेंड अपॉन द कौन सा केमिकल वो ले पी कर आया है और किस तरह की वो पॉइजनिंग कर रहा है, उसकी नेचर कितनी है, दैट विल बी डिसाइड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशन कि क्या बेस्ट मैनेजमेंट है। और व्हीट पील्स के साथ अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन करती है, इट्स आल्सो वेरी कॉमन पॉइजनिंग। पहले लोग जो है वो चूहे मार दवाइयाँ लेकर आते थे, दैट इज वार्फरिन, जिसकी वजह से पेशेंट का जो है वो ब्लीडिंग होती थी। उसकी इजीली हम विटामिन K देकर हम पेशेंट को मैनेज कर लेते थे। बट आजकल जो है वो जो मोस्टली सुसाइडल केसेस आ रहे हैं उसमें वो क्या यूज कर रहे हैं, व्हीट पिल्स, जो कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी डेफिनेटिव सपोर्टिव थेरेपी नहीं है, यानी कोई भी डेफिनेटिव एंटीडोट इसका अवेलेबल नहीं है एल्यूमिनियम फॉस्फेट का। और इसमें पेशेंट जो वीट टैबलेट्स लेकर आते हैं, देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी लो, क्योंकि विद इन 30 मिनट इट कैन कॉज डेथ। एंड उसके लिए आप गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हो। गैस्ट्रिक लवाज में आप डिफरेंट ऑयल्स यूज कर सकते हो, लाइक KMnO4 यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, एंड लाइक इन द केस ऑफ द एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन एंड उसकी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी कम हो। उसके अलावा आप पॉइफिन ऑयल यूज कर सकते हैं। पैराफिन ऑयल इज वेरी गुड इन केस ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जो एट्रोपिन वगैरह के जिसमें एंटीडोट यूज होता है। इसके अलावा इन द केस ऑफ द व्हीट पिल्स आप एल्यूमिनियम फॉस्फेट अगर देखते हैं, अगर पेशेंट 30 मिनट्स के अंदर अंदर आता है तो इट इज ऑल्सो वेरी टॉक्सिक, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम फॉस्फेट एक पार्ट, वन पार्ट इन द मिलियंस ऑफ द पार्ट भी अगर आप इनहेल भी कर लेते हो तो इट इज टॉक्सिक फॉर द पेशेंट। बिकॉज जब वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट स्टमक एंड एक्वस कंडीशंस के साथ जब टीन अटैच होता है, जो कि स्टमक में आपके माउथ में होता है, अगर उसे मुंह से चख भी लिया तो इट इज पॉइजनस एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो अगर वो एक्वस मीडियम में है, स्टमक में है, तो इट विल बी क्वाइट अवेलेबल इन दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसका छोटा सा हिस्सा भी इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। क्योंकि जब वो एल्यूमिनियम फॉस्फेट या वीट टैबलेट जब इन कांटेक्ट विद द एक्वस मीडिया आता है तो इट प्रोड्यूसेस द गैसेस दैट इज फॉस्फोरिन गैस, एंड द फॉस्फोरिन गैस प्रोड्यूसेस एडिमा इन द पेशेंट। उसके अंदर डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स शो होते हैं। उसकी पॉइजनिंग की डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं। एडिमा इज द बिगेस्ट थिंग, परमानेंटली एडिमा हो जाता है, सांस रुकने लग जाता है। तो पेशेंट में जो है ये सारे स्वीट पिल्स पॉइजनिंग की कंडीशन है। इवन उसने उसको जबान पे भी रख लिया है तो व्हीट पिल्स आर डेंजरस एज दैट। इवन अगर व्हीट पिल्स इन कंटेक्ट विद इन दी, आपकी फॉर एग्जाम्पल रूम में पड़ी हुई है, इन कंटेक्ट विद दी, वो आ गई है इन द कंटेक्ट विद द वाटर और उससे फॉस्फोरिन गैस प्रोड्यूस हुई, इवन इफ यू हैव इनहेल्ड दैट फॉस्फोरिन गैस, it is still poisonous, it is still dangerous for the patient, and it is still life threatening for that patient. So आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ द टॉक्सिसिटीज। इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन जो है वो टॉक्सिसिटीज को हम पार्ट 3 में करेंगे, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ। टाइप ऑफ द टॉक्सिसिटीज क्रॉनिक भी हो सकती हैं अभी और एक्यूट भी हो सकती हैं। क्रॉनिक इट कैन बी लाइक स्लोली प्रोग्रेसिंग थिंग, आप कोई वेपर्स कर रहे हो, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक टॉक्सिसिटी है,
फीमेल्स जो कॉस्मेटिक्स यूज करती हैं, दे आर दी क्रोनिक कंडीशंस, इसमें क्रोनिकली पेशेंट को थोड़ी थोड़ी पॉइजनिंग मिल रही होती है थ्रू दैट कॉस्मेटिक्स, एंड द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है उसका एक्सपोजर दे प्रोवाइड पॉइजनस थिंग्स टू द पेशेंट्स, और उसकी वजह से पेशेंट को पीसीओएस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होती हैं, दैट आर दी साइन ऑफ द टॉक्सिसिटीज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द कॉस्मेटिक्स। ओटीसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो पेशेंट अगर क्रोनिकली यूज कर रहा है उसकी वजह से भी जो है वो डिफरेंट पेशेंट को यूज होती हैं। अभी जो हम एंटीडोट्स मोस्टली वो देखते हैं वो एक्यूट टॉक्सिसिटीज में हम देख रहे होते हैं। सो पॉइजनिक कंट्रोल सेंटर्स भी हॉस्पिटल्स में होते हैं, डीपीआईसीज, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड पॉइजन कंट्रोल सेंटर से भी जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या डिफरेंट सिटीज में अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी हम जो है वो क्यूरीज पूछ सकते हैं अबाउट दी ड्रग पॉइजनिंग मैनेजमेंट, एंड जो है वो उसकी देखते हैं। और इस पॉइजनस को रोकने के लिए चाइल्ड रेजिस्टेंट जो है वो जो है वो पैकेजिंग मटेरियल भी है, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है वो अपने जब बड़ों को टैबलेट्स खाते हुए देखते हैं तो दे चीट देम एंड दे टेक द टैबलेट विद लाइक देम, बट इट लीड्स टू द पॉइजनिंग टू द किड्स, तो उसके लिए भी डिफरेंट इंटरवेंशंस होती हैं। तो इंशाल्लाह विद डिटेल्स टॉक्सिसिटी और स्किन इंटरवेंशंस, हाउ टू अवॉइड टॉक्सिसिटी एंड द पॉइजनिंग, वो इंशाल्लाह डिटेल में हम इसके पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, एंड यू ऑल्सो हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट। इंशाल्लाह लिंक जो है वो उसका आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया जाएगा, और वो अवेलेबल होगा इन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारी जो थी वो डिफरेंट पॉइजनिंग उसकी टॉक्सिसिटीज थी। अब हम आगे आ जाते हैं दोबारा एंटीडोट्स पे। पार्ट 1 में हमने एंटीडोट्स की टाइप सारी वो स्टडी की थी। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीडोट्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके ब्रांड, उनकी इंडिकेशन, पिक्टोरियल फॉर्मेशन, और उनकी जो है वो मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, उनकी उनकी टॉक्सिसिटी कैसे हो सकती है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट्रोपिन सल्फेट या पेरिडोक्साइन। सो इसको एट्रोपिन इंजेक्शन या है, इसके अलावा एट्रोपिन सल्फेट भी हम इसको कहते हैं। इंडिकेशन इसकी एंटीकोलिन एस्ट्रेस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जिसमें मेलाथायोन, पैराथायोन ये मेजर ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं जो कि इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज होते हैं, यानी जो लोग जो है वो कीड़े मार दवाई स्प्रे पी के आ जाते हैं, दैट इज द पॉइजनिंग ऑफ द एंटी कोलिनेस्ट्रेस या ऑर्गेनोफॉस्फेट, उसमें हम पेशेंट को जो है वो एट्रोपिन देते हैं, या फिर हम पेशेंट को क्या देते हैं, प्रेलिडोक्साइन देते हैं। उसके अलावा कार्बामेट्स पॉइजनिंग, कार्बोनाइल एंड कार्बोफ्यूरेन एंड मिथोनाइल इंसेक्टिसाइड, इसके अलावा डिफरेंट नर्व गैसेस हैं, सैरिन गैसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल वार्फरिन, ये एक बायोलॉजिकल वो है weapon. It is used as sarin gas जो है वो it was used as a biological weapon in the World War II I think. So इसका जो एंटीडोट है वो that is also atropine. इसका mode of action अगर हम देखें तो it is a competitor inhibitor of the muscarinic receptors. muscarinic receptor के ऊपर organophosphate और जो कार्बामेट या फिर जो भी एंटीकोलिनेस्ट्रेस पॉइजन जो अटैच हुए होते हैं उसके साथ ये competitive उनको डिटैच करके उनके साथ बाइंड हो जाते हैं और उनको बाइंड नहीं होने देता, एंड देन स्लोली जो वो पॉइजन है वो हमारी बॉडी से रिमूव होने लग जाते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें या रूट की बात करें तो इट इज आईवी, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर तीनों। इसकी डोजेस की बात करें तो 0.4 मिलीग्राम पर एम एल, ये सारी इसकी डोजेस अवेलेबल है। 0.4 मिलीग्राम पर एम एल नॉर्मल सलाइन में हम इसको डाइल्यूट करके देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अडल्ट में हम 2 से 3 मिलीग्राम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सिवियरिटी और कितनी वो क्वांटिटी लेकर आए हैं, और रिपीट करेंगे आफ्टर एवरी 20-30 मिनट्स के बाद हम उसको 2 से 3 मिलीग्राम देंगे दोबारा बार बार। और 165 मिलीग्राम टैबलेट भी देख सकते हैं। अगर हम इसके आगे एडवर्स रिएक्शन की बात करें एट्रोपिन की, ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, सेंसिटिविटी टू द लाइट, लैक ऑफ स्वेटिंग, डिजीनेस, nausea, loss of balance, hypersensitivity and tachycardia. But these adverse effects are still safe than the life-threatening condition. पेशेंट मरने से तो बेहतर है कि पेशेंट इन कंडीशन में चला जाए। फ्लूमेजीनिल की बात करें तो डेट इज एनेक्सेट, जिसका ब्रांड रोमेसिकॉन है, ये हमारे पास है। फ्लूमेजीनिल इंजेक्शन 1 मिलीग्राम पर 10 ml इंजेक्शन है। बेंजोडाज़ेपीन एंड डाज़ेपीन एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द कंडीशन ऑफ द पॉइजनिंग एंड अल्कोहल विथड्रॉल। इट्स ऑल्सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बाइंड करता है बेंजोडाज़ेपीन रिसेप्टर के साथ, और जो हमारे टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर देता है। 10 मिलीग्राम या फिर 10 माइक्रो मिलीग्राम पर एम एल आई वी इसका अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन हम इसकी 0.2 मिलीग्राम आई वी करते हैं एवरी 15-30 सेकेंड, और या फिर हर 30 सेकेंड के बाद हम इसका या फिर स्लो इन्फ्यूजन हम इसकी देते हैं विद द इंटरवल ऑफ आइदर 1 मिनट या फिर विद द इंटरवल ऑफ
30 सेकेंड तो बेटर ये है कि हम इसकी स्लो आईवी इन्फ्यूजन प्रोवाइड कर दें। सो इसके एडवर्स में आ जाता है हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज स्वेटिंग, फ्लशिंग, विजन प्रॉब्लम, पेन इन द मेडिसिन एट द इंजेक्शन साइट। आगे आता है प्रोटामीन सल्फेट। इट इज यूज इन द केस ऑफ द हेपरिन पॉइजनिंग या फिर जो भी एंटीकोगुलेंट पॉइजन होते हैं जो कि हमारे एंटीकोगुलेंट के जो साइट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट कर लेता है। इसकी जो ब्रांड है दैट इज न्यूप्रोटा इंजेक्शन। न्यूप्रोटा इंजेक्शन है, इसके अलावा इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। सॉरी सॉरी, इसकी सिर्फ आईवी डोजेज फॉर्म अवेलेबल है। ओनली आईवी इंजेक्शन 20 मिलीग्राम पर 5 ml या 10 ml पर। 10 ml ये भी सेम बाइंड करता है, हेपरिन की जगह जाकर ये बाइंड करता है, हेपरिन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। 1 मिलीग्राम ऑफ दी हेपरिन, heparin can sorry 1 milligram of the जो protamine it binds to the 10 मिलीग्राम ऑफ दी हेपरिन और उसको वो जो है एज एंटीडोट एक्ट करता है 10 मिलीग्राम पर ml। एंड आईवी अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी हम स्लो आईवी इन्फ्यूजन देते हैं पेशेंट को। एंड इट शुड नॉट बी एक्सीड 50 मिलीग्राम पर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर हमने पेशेंट को 10 जो है वो 15 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है वो प्रोटामिन सल्फेट नहीं देनी। इसकी जो है वो फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड दी ऑन टू वर्ड द पेशेंट। उसके अलावा इसकी टॉक्सिसिटी अगर हम देखें, सीवियर ड्रॉप इन द बीपी, डिस्पीनिया, ब्रेडिकार्डिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एनाफिलेक्टिक शॉक, ओवरडोज की केस में पेशेंट को हैमरेज भी हो सकता है। आगे है विटामिन के। विटामिन के का जो मेजर ब्रांड है दैट इज के लोट इंजेक्शन। ये आईवी, इंट्रामस्कुलर और ओरल तीनों रूट से दिया जा सकता है। इवन इसका जो इंजेक्शन है वो हम पी भी सकते हैं इन द केस ऑफ द विटामिन के जब पेशेंट को नीड होगा। तो जो चूहे मार दवाइयाँ होती हैं, जो वार्फरिन पॉइजनिंग होती है या जिसको क्यूमरिन ब्रांड है वो उसका, उस कंडीशन में हम पेशेंट को केलोड या फिर विटामिन के देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एंटीकोगुलेंट लाइक ब्रोमा ब्रोमा डायोलोन एंड रोडेंटिसाइड्स जो हैं चूहे मार दवाइयाँ उसमें ये यूज करते हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका सेम है। विटामिन के जो है वो it's helps in the coagulation and warfarin stop the coagulation by inhibiting the vitamin K। so vitamin K को ये जो है वो एक्टिवेट करेगा टू कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। ये इसका ब्रांड है, 10 माइक्रोग्राम की टैबलेट है, शुगर सॉल्ट एंड स्टार्च फ्री टैबलेट है। Then आ जाते हैं विटामिन के की स्ट्रेंथ एंड रूट। 10 मिलीग्राम पर ml, 2 मिलीग्राम पर ml। ओरल में इसके जो है वो 100 मिलीग्राम की टैबलेट नहीं है। आईवी में भी इसकी 100 मिलीग्राम और आईवी और आईएम और ओरल तीनों अवेलेबल हैं। और इट्स वेरी फ्री टू यूज एंड इट वेरी इजी टू यूज। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो 15 से 100 में यूनिट्स जो होंगी इसकी वो हमने देनी है हर 2 घंटे के अंदर या फिर 12 घंटे के अंदर। एक साथ हमने पेशेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन के नहीं देना, बिकॉज इट कैन लीड टू द हाइपर कोगुलेशन स्टेट और पेशेंट क्लॉटिंग भी कर सकता है। इसलिए एक हमने देख भाल कर पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक उसको हमने विटामिन के की इंजेक्शन या फिर टैबलेट्स देनी है। इसकी टॉक्सिसिटी भी नहीं करनी। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो पेशेंट के अंदर क्लॉट बनेगा। इट कैन लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई, ब्लूइश कलर ऑफ द फिंगर नेल्स, लिप्स, स्किन, palms एंड द नेल ऑफ द बेड्स एंड द चेस्ट टाइटनेस एंड कंफ्यूजन, पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा पेशेंट को। डाइजॉक्सिन इम्यूनोफैब, इट इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ द डाइजॉक्सिन, जो कि हमारे पास जो है वो आफ्टर द myocardial infarction यूज होता है। इट इज ऑल्सो एजेंट दैट इज यूज इन द एरिथमिया एंड हार्ट फेलियर इन द पेशेंट। इसकी जो मेजर ब्रांड है दैट इज डिजीबैंड, डिजीबैंड, इट्स हियर, इट्स इंजेक्शन एंड डाइजॉक्सिन इम्यूनोफैब इसका जो है वो नेम है। डिजिबिन एंड डिजिफैब एंड इंजेक्शन आईवी अवेलेबल होता है। इट्स यूज इन दी डाइजॉक्सिन पॉइजनिंग। इसकी वायल्स यूज होती हैं, वायल्स एंड द वायल्स। जब तक पेशेंट के अंदर जो है वो स्टेट ऑफ द पॉइजनिंग ट्रीट नहीं होती तब तक हम पेशेंट को विद इंटरवल्स ऑफ सम टाइम हम पेशेंट को वायल जो है वो लगाते रहते हैं। मोड ऑफ एक्शन इज स्टिल इट्स एक्ट्स एज अ antibodies toward the toxicity of the डाइजॉक्सिन पॉइजनिंग। आगे देखते हैं हम इसकी स्ट्रेंथ एंड रूट। 30 मिलीग्राम प्यूरिफाइड डाइजॉक्सिन स्पेसिफाइड फैब फ्रेगमेंट हम देते हैं पेशेंट को आईवी रूट से। डोजेज फॉर्म अगर हम देखें तो वैट्स विद द अमाउंट एंड द एवरेज जो है वो पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट्स में 10 वाइल्स तक दे सकते हैं टू अवॉइड द टॉक्सिसिटी ऑफ द डाइजॉक्सिन। इसके अलावा इसके डिवर्क सेट में हाइव, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, swallowing इन द फेस, माउथ एंड लैप्स, wheezing, cough, swollen glands, itching and problem in the potassium
swallowing। आगे हम आ जाते हैं नैलेक्सोन। नैलेक्सोन इज अ वेरी कॉमनली यूज एंटीडोट, जो कि मोस्टली पेशेंट जो एंड ओपियोइड्स की जो है वो टॉक्सिसिटी या ओपियोइड्स को ओवर यूज करते हैं उन पेशेंट में यूज होती हैं। इसमें एंट्रेलियम इंजेक्शन आ जाता है, ओपियोइड्स, ट्रामाडोल, कोकेन एंड मॉर्फिन। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें, इट कम्पीट फॉर द opioids receptors and displaces opioid drugs from these receptors, thus reversing their effect। आगे अगर हम बात करें तो opioids के साथ ये रिवर्स करके उनके साथ compete करके उनके साथ बाइंड करके उनका इफेक्ट जो है वो रिवर्स कर सकता है। ये नैलोक्सोन का इंजेक्शन है। पेशेंट को 10 वाइज 2 वाइज ये डिपेंड करता है कि कितनी पेशेंट ने ओपियोइड्स ली हैं, क्योंकि पता है पेशेंट जो ओपियोइड्स के जो अब्यूजर्स होते हैं, जब पहले वो थोड़ा क्वांटिटी में यूज करते हैं, फिर ज्यादा यूज करते हैं, फिर उससे ज्यादा यूज करते हैं, तो पेशेंट क्योंकि डिसेंसिटाइज हो जाता है, तो उसको हमेशा वो सेम इफेक्ट लाने के लिए उस ओपियोइड्स का ज्यादा से ज्यादा ओपियोइड यूज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए पेशेंट को हमें जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ वाइल्स जो है वो नैलोक्सोन की देनी पड़ती है टू रिवर्स दैट इफेक्ट, जिसमें 0.4 मिलीग्राम पर ml होता है अवेलेबल। इट कैन बी गिवन थ्रू IV, IM एंड सबकुटेनियस वे, एंड इट हैज सिंगल डोज वाइल। उसी वक्त ओपन की और पेशेंट को लगा दी। तो ये सारी इसकी डोजेस हैं, 0.4 मिलीग्राम पर ml, 40 मिलीग्राम IM, सबक्यूटेनियस एंड IV दे सकते हैं इसको इन द डिवाइडेड डोज, यानी हर 10 मिनट में या 5 मिनट के बाद हम पेशेंट को जो है वो 0.4 मिलीग्राम पर ml की हवा जो है वो लगाएंगे। इसके एडवर्स इफेक्ट में देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, एग्रेसिवनेस and tachycardia, shivering, and the patient might come with the tremors। आगे जाते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। 1 ग्राम पर kg, 25 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम ओरली, इवन मोर देन दैट इन द फ्री फॉर्म में भी चारकोल अवेलेबल होता है। पेशेंट को हम जो है वो इंडिकेशन और इसकी प्राइमरी यूज देखें तो यूज टू अब्सॉर्ब टॉक्सिन इन द GIT विद 30 to 60 मिलीग्राम ऑफ द इंजेक्शन, यानी टैबलेट पेशेंट ने ली है, जब भी कोई भी पर्सन से इंजेस्ट किया तो उसके विद इन 30 to 60 मिलीग्राम हमने पेशेंट को जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल देना है। उसके बाद हम उसको एंटीडोट या फिर सिस्टमिक एंटीडोट प्रोवाइड करेंगे। इन द केस ऑफ द एंटीडोट पॉइजन रेमेडी, मोड ऑफ एक्शन देखें तो इट absorb ingestion toxin that is present in the systemic circulation and it gives its antidote effects right there। आगे हम देखते हैं इसकी जो है वो ब्रांड। तो यहाँ पे इसका न्यूट्रा बॉन्डी का एक्टिवेटेड चारकोल अवेलेबल है, दैट इज 250 मिलीग्राम पर kg। आगे एक्टिवेटेड चारकोल में अगर हम देखें स्ट्रेंथ एंड रूट, तो एंड इसकी जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, दैट इज एंटीडोज एक्वा, इंस्टा एक्वा, एंड दैट इज लिक्विड चार, एंड इट इज सुपर चार। टैबलेट अगर हम देखें तो 250 मिलीग्राम, 260 मिलीग्राम, 208 मिलीग्राम, एंड इसकी सस्पेंशन भी है। सस्पेंशन में 25 मिलीग्राम की सस्पेंशन है, एंड पैलेट्स भी इसकी हैं, और इसकी डिफरेंट डोसेज फॉर्म अवेलेबल है। तो ओरली देते हैं 25 ग्राम एवरी 2 आवर्स, ताकि वो बाइंड कर ले विद द पॉइजन सब्सटेंस, बट स्टिल इट्स नॉट 100% एक्टिव एंड इट्स नॉट 100% इफेक्टिव, बिकॉज स्टिल कुछ अमाउंट ऑफ द पॉइजन विल बी आल्सो अवेलेबल इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आगे एडवर्स इफेक्ट देखें तो इट्स कॉजेज कॉन्स्टिपेशन एंड स्टूल ब्लैक हो जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट जो कि गट म्यूकोजा डैमेज के साथ है, तो वहां पे परमानेंट ब्लॉकेज भी कर सकता है। DMS से या फिर डायमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड देखें तो इट इज यूज एज एंटीडोट ऑफ हैवी मेटल लाइक लेड एंड मर्करी पॉइजनिंग। DMSA इट एक्ट एज अ, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट एज अ चिलेटिंग एजेंट। DMS से जो पॉइजनिंग सब्सटेंस के साथ जो है वो चिलेशन कर लेता है। सक्सिमर एंड सिमिट इसकी ओरल टैबलेट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। सक्सिनिक इसको हम सक्सिमर भी कहते हैं। DMSA को इसकी 200 मिलीग्राम, 2000 मिलीग्राम की, या फिर 1200 मिलीग्राम की डिफरेंट टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। ओरल देते हैं ये पेशेंट को। एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो 30 मिलीग्राम पर kg पर डे इज एन इफेक्टिव डोज फॉर द पेशेंट। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड स्किन एलर्जी भी कर सकता है। आगे आ जाता है इसकी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज लाइक, इसके ब्रांड आ जाते हैं फ्लोसिन 80 mg या FA88। ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। इंडिकेशंस देखें तो मैथनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, एंड इट्स द ब्रांड न्यूट्रोफैक्टर फॉलिक एसिड 40 100 mg। इसके अलावा ये फीमेल्स पेशेंट में जो कि कंसीव या फिर जो है वो
puberty या फिर इन दैट कंडीशन, इन द प्रेगनेंसी कंडीशन, तो उसमें ये पेशेंट में भी यूज होता है फॉलिक एसिड, एंड इन द केस ऑफ द मेथनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड पॉइजनिंग में भी ये यूज होता है। स्ट्रेंथ एंड रूट देखें तो IV 150 mg एडमिनिस्ट्रेशन इसकी अगर हम देखें तो इट इज कैन बी गिवन orally, per oral, PO, it's used for the per oral. It can be given IM, it can be given IV, and it can be given in the subcutaneous route. Adverse effect की बात करें तो it is can cause nausea, loss of appetite, bloating, gas, stomach pain, bitter and unpleasant taste in the stomach, confusion, trouble in the concentration, sleep problem, depression, and the sleep disturbance. आगे आ जाता है glucagon. As shown from the name, glucagon injection synthetic होता है and it's 1 milligram per vial. It can be used in the subcutaneous, intramuscular, intravenous, and it is specified कि आप पहले इसको reconcentrate कर लें in the sterile water of injection according to the USP indication. आगे देख लेते हैं indication इसकी बीटा ब्लॉकर. बीपी पॉइजनिंग में ग्लूकागोन यूज करते हैं. रिमेंबर द इजी रिमेंबर ट्रिक, ग्लूकागोन, BB गन, बीटा ब्लॉकर एंड ग्लूकागोन. इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो CCB, जो पेशेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट जो है उनके अंदर अगर हाइपरटेंसिव ड्रग्स की पॉइजनिंग हो जाए और इट लीड टू द हाइपोटेंशन इन देन उस केस में हम पेशेंट को ग्लूकागोन देते हैं. मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो ग्लूकागोन है इट बाइंड एंड डाइजेस्ट प्रिवेंट द सिस्टमिक सर्कुलेशन और इसको एंटी कर देता है. एज एंटीडोट स्ट्रेंथ बात करें तो 50 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम से पर वाइल होता है. IV IM सबक्यूटेनियस दे सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसकी हम 10 to 10 मिलीग्राम ऑफ द स्टेरॉइड डाइल्यूएंट में हम इसकी पहले डाइल्यूशन करेंगे और देन पेशेंट को हम जो है एडमिनिस्टर कर देंगे IV सबक्यूटेनियस रूट से. एडवर्स इफेक्ट इसकी नोजिया, वॉमिटिंग एंड आर्टिकल पेन है और यूरिनेशन है. एंटी वेनम या स्नेक बाइट, यानी पेशेंट जो है वो विद द केस ऑफ द स्नेक बाइट के साथ आया है तो स्ट्रेंथ एंड रूट देखें तो 12 वाइल्स, 1 वाइल भी दे सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन हम पेशेंट की IV रूट से करेंगे. एंटी वेनम नॉर्थ अमेरिकन कोरल स्नैक वेनम 10 मिलीग्राम की वाइल पड़ी हुई है. अच्छा, ये पॉलीवेलेंट भी हो सकता है एंड ये मोनोवेलेंट भी हो सकता है. पॉलीवेलेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटीबॉडीज ऑफ द एंटी स्नैक वेनम होता है और मोनोवेलेंट में स्पेसिफिक होता है जब हमें आइडेंटिफाई नहीं होता कि पेशेंट को किस स्पेसिफिक स्नेक ने बाइट किया था, हम उसको इस केस में पॉलीवेलेंट स्नेक एंटीडोट देते हैं. और इफ इन द केस इट इज identified that which kind of the snake is bite the patient, तो उस केस में हम जो है वो मोनोवेलेंट या फिर स्पेसिफाइड एंटीडोट भी यूज कर सकते हैं. ब्रांड में इसकी क्रोबोफैब पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम भी अवेलेबल है. इट्स केस ऑफ द स्नेक बाइट या क्रोटालीन स्नेक बाइट. इन द केस ऑफ द एंटी वेनम ब्लैक विडो स्पाइडर के केस में ब्लैक विडो स्पाइडर या फिर हम इसको एनवियोमेशन भी यूज करते हैं. मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? 1 वाइल जो है वो इट बाइंड with the venom and it gives the symptoms relief and the poison systemic relief for the patient. um, and ठीक है जी, आगे आ जाते हैं डेफेरोक्सामीन. डेफेरोक्सामीन इट इज यूज इन द आयरन पॉइजनिंग. आयरन को हम फेरस कहते हैं और ये FER इज आल्सो कमिंग इन द नेम ऑफ द एंटीडोट. इसकी जो ब्रांड है दैट इज डिफ्लॉक्सिमाइज मिसाइलेट इंजेक्शन. दिस इज हेयर 2 मिलीग्राम per vial. It can be given in the subcutaneous, IV, and the intravenous route. And each vial contains 2 gram of the lyophilized deferoxamine mesylate antidote, and it can be given in the IV. And Desferal is its brand, and uh, we can give it in the route to the patient. तो आगे आ जाता है डिफ्रोक्सिमीन की. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें रूट की तो दैट इज 500 मिलीग्राम. ये जो 2 ग्राम की थी, इसके अलावा 2 ग्राम और IV IM दोनों दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं. इनिशियल डोसेज जो है वो पेशेंट को IM या IV हम देंगे 100,000 मिलीग्राम देंगे. या फिर हम उसके अकॉर्डिंग टू द वेट 15 मिलीग्राम पर केजी पर आर देंगे मेंटेनेंस डोज में. इन्हें डिवाइडेड डोज करके पेशेंट को दे देंगे. विद डिवाइडेड डोज क्या होगी उस पेशेंट को जो है वो हम वेरी सेफली दे सकते हैं डिवाइडेड डोज के साथ. इन द केस ऑफ द आयरन पॉइजनिंग, यानी पहले एक दो घंटे या पहले 1-2 दिन या 4 से 12 घंटे हमने कुछ अमाउंट दी, 100 मिलीग्राम दी, 1000 मिलीग्राम दी. फिर हमने उसको अगले 4 से 12 घंटे के बाद 500 मिलीग्राम दे दी और एक दिन में हमने उसको अगले 24 घंटे में हमने उसको 600 मिलीग्राम दे दी.
सो इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं दैट इज ब्लूइश इन द स्किन, फिंगर नेल्स, convergence seizures एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। आगे हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड इज ऑल्सो एन एंटीडोट, इज कैल्सीगेट एंड इज इंजेक्शन या कैल्शियम ग्लू नेटिव में इसकी जो है वो ब्रांड नेम है। कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्शन 10% जो है यहाँ अवेलेबल है, यूएसपी 1 ग्राम जो है इसके अंदर अवेलेबल होता है in the 10 ml. So calcium, it is used in the case of the calcium channel blocker, overdose and in case of the vampire poisoning जो है वो हम 10% कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका यही है कि इट बाइंड्स विद द साइड्स एंड इट बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट, और जाके उस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से, उस कैल्शियम बैलेंस से जो है वो पॉइजनिंग को स्टॉप करता है। रूट ऑफ स्ट्रेंथ देखें तो हम इसको IVIM दे सकते हैं 500 से 1000 मिलीग्राम, और जो है वो इसको हम एडमिनिस्टर करेंगे 5000 मिलीग्राम IV ओवर 5 to 10 मिनट्स तक इन दी IV रूट। रैश, हाइज एंड डिजीनेस इसके एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। आगे आ जाता है मिथाइलिन ब्लू, इट इज यूज इन द केस ऑफ द मिथामोग्लोबिन या फिर मिथाग्लोबिन क्लोरेट्स की टॉक्सिसिटी में। नो ब्रांड अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल इन पाकिस्तान मिथाइलिन ब्लू का। इट इज एक्सपोर्टेड ऑल्सो, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है। इट एक्ट एज द एंटीडोट, एज द केमिकल एंटीडोट। इसका मैकेनिज्म ऑफ यही है कि इट्स केमिकली डिटॉक्सिफाई द पॉइजनस सब्सटेंसेस, इट द methaglobulin like prova blue, it's 50 milligram per ml per vial and it can be used through the IV route only, and 1% 10 मिलीग्राम पर ml IV और रूट दोनों से दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 1.5 से 2 मिलीग्राम पर केजी अगर हम पेशेंट को IV देंगे तो तकरीबन हम उसको 20 मिनट से 1 घंटे तक देंगे, या पर ऑरल भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है पेल और येलो स्किन कलर, डार्क स्किन, यूरिनेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड लेवल ऑफ सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा, पेशेंट एजिटेट करेगा, हेलुसिनेशन उसको होगी। आगे आ जाता है कैल्शियम डाइसोडियम EDTA, it is like brand name like penicillium, calcium EADT, ये यहाँ पे अवेलेबल भी है। Edate calcium disodium injection, it is used in the case of the lead poisoning and the case of the heavy metal poisoning। 3000 मिलीग्राम पर 100 ml वायल में अवेलेबल है, यानी इसके पर ml जो होगा वो 300 ml पर वायल होगा। फॉर इंट्रामस्कुलर एंड फॉर द IV यूज अवेलेबल है, एंड इट आल्सो हैव द केमिकल एंटीडोट एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है। स्ट्रेंथ रूट देखें तो 2.5 ग्राम अवेलेबल है डायरेक्ट, और इसको हम IV रूट से देते हैं पेशेंट को, एंड इट इज वेरी मिनिमम साइड इफेक्ट्स। एंड आगे हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन की। इफ फॉर एग्जांपल इसकी जो ब्रांड देखें वो है एड्रेनालिन इंजेक्शन, एड्रेनालिन इंजेक्शन 1 मिलीग्राम पर ml। ये याद रखने आपने सारे की डोसेस, और इट्स गिवन लाइक इन द 1 to 1000 रेशियो, यानी 1 मिलीग्राम पर ml इसके अवेलेबल है, 1% एड्रेनालिन सोल्यूशन। So natural antidote for some chemicals released in several allergic condition and anaphylaxis। पेशेंट किसी एनाफिलैक्टिक शॉक के साथ आ रहा है, इन द केस ऑफ एनी पॉइजनिंग कंडीशन, एंड पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो कम हो रही है, तो उस केस में हम पेशेंट को एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन देते हैं। सो इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो दैट इज 10 मिलीग्राम पर ml। इसको हम IV, IM या सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें 0.3 से 0.5 मिलीग्राम आप अनडिलेटेड पेशेंट को देंगे IV या IM, एंड अप टू 0.5 मिलीग्राम पर इंजेक्शन आप उसको रिपीट कर सकते हैं आफ्टर एवरी 5 to 10 मिनट। इट डिपेंड ऑन के पेशेंट जो है वो एनाफिलैक्टिक शॉक से बाहर नहीं आ रहा। एंजाइटी, एंटी ट्रिमर, रेस्टलेसनेस, वीकनेस, डिजीनेस, स्वेटिंग, palpitations, pallor, nausea, vomiting and respiratory difficulties are there। साइड इफेक्ट्स आ गया जाता है L-carnitine, it is used in the poisoning of the valproic acid। Carnitor, its brand and its की जो dosage form है that is here। L-carnitine 15 मिलीग्राम tablet है इसकी, that is used in the case of the valproic acid toxicity। इसकी 250 मिलीग्राम 330 और ये जो हमारे पास 500 मिलीग्राम टैबलेट्स अवेलेबल है एल कार्निथिन, एंड इट्स आल्सो यूज एज अ सप्लीमेंट। 900 से 990 मिलीग्राम जो है वो पर ओरल दे सकते हैं एवरी 8 आवर्स या 12 आवर्स अप टू दी 3 मिलीग्राम पर डे इनिशियली डोजेज। और इसके अलावा हम पेशेंट को अगर IV दे रहे हैं तो हम उसको IV बोलस दे सकते हैं इसका 50 मिलीग्राम IV बोलस पर केजी।
इसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, इट कैन कोज स्टमक अपसेट, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक एंड मसल वीकनेस। ओके, यहाँ पे हमारे जो मेजर मेजर एंटीडोट्स है वो खत्म हो जाते हैं। अब हम उसके अलावा जो एंटीडोट्स हैं वो पढ़ते हैं। इंजेक्शन ऑक्ट्रेट एसिडेट सेंडोस्टैटिन, इट इज यूज इन दी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट। जब पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या सल्फोनाइल यूरिएस की एंटीटॉक्सिसिटी से आता है, तब हम पेशेंट को सेंडोस्टैटिन देते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है ये। पेशेंट जो है वो इंसुलिन टॉक्सिसिटी वगैरह या फिर इंसुलिन मिसमैनेजमेंट जो होती है उसको मैनेज करता है। इसकी डोज जो है वो 10 mg/ml है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है इन द केस ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑल्सो। कैल्शियम ग्लूटामेस सीसी ब्लॉकर्स या रैम्पल पॉइजन में यूज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। रूडेंट बाइट्स, यानी किसी चूहे ने या किसी बिल्ली ने बाइट किया है तो उस केस में रेबीज वैक्सीन है इसका एंटीडोट। टेटनस इम्यूनोग्लोबिन या फिर जो टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीन है जिसका ब्रांड जो है वो टेटागेम इमिटेट है। ये जो टेटनस की वैक्सीन है वो पेशेंट में यूज होती है रोड एक्सीडेंट या स्किन एरप्शन के केसेस में। इट्स अ वैक्सीन, इट्स आल्सो एज एंटीडोट एंड इट्स आल्सो द प्रिवेंशन थिंग। फिर आ जाता है आगे, हमारे पास आ जाता है एस्प्रिन। एस्प्रिन की पॉइजनिंग में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। मैग्नीशियम सल्फेट की पॉइजनिंग में हमने कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, टीसीए। एंटी डिप्रेसेंट लाइक एमीट्रापिन, एमिट्रालिन, सीरस टॉक्सिसिटी इनकी होगी तो हमने कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड अल्फा एगोनिस्ट देना है। मिथेनॉल की पॉइजनिंग में हमने इथेनॉल देना है। ये सारे हमने पीछे बहुत डिटेल में पढ़े हैं। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ रिकैप फॉर यू गाइस। इंसुलिन की पॉइजनिंग में हम, यानी इंसुलिन पेशेंट को बहुत ज्यादा मिल गया, वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में चला गया, तब हम उसको 50% या 25% डेक्सट्रोज वाटर देंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल या मिथानोल पॉइजन हम देंगे फ्लोमेजिनिल इंजेक्शन, जो कि एंटीजोल इंजेक्शन आईवी देंगे 1.5 ग्राम से 1/5 ml आईवी। हाइड्रो हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम की टॉक्सिसिटी में हम पेशेंट जो है वो स्टेटस एस्टमेटिक कंडीशन में आ रहा है उसको हम 100 mg/ml आईवी देंगे। डेमर कैप्रोल के पेशेंट को हम गोल्ड पॉइजनिंग की कंडीशन में हम जो है वो 10 mg डेमर कैप्रोल, 250 mg बेंजाइल बेंजोएट या 680 जो है वो पिनाडोल के साथ आईवी दे सकते हैं इन केस ऑफ द कोल्ड पॉइजनिंग भी हो सकती है। Paralidoxime, anticholinesterase nerve agent, poisoning antidote in the organs, phosphate based pesticide, manage overdose। ये हमने पहले डिटेल में पढ़ लिया। लिथियम पॉइजनिंग में हम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पॉलीस्टाइरीन सल्फेट यूज करेंगे। सोडियम थाइसल्फेट हम साइनाइड, ब्रोमेट या क्लोरेट की पॉइजनिंग में यूज करेंगे, ये भी हमने डिटेल में पीछे पढ़ा। इसकी 50 mg देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। So in the case of the thrombolytic agents like streptokinase, urokinase, alteplase and reteplase, तो जब ये यूज होते हैं तो अगर इनकी पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें हम एमिकेप्रोनिक एसिड या ट्रानिक्सामिक एसिड यूज करते हैं इंट्रावेनियस फैट एमल्शन में। इसके अलावा अगर थ्रोम्बोलिटिक्स की टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी दे सकते हैं। इंट्रावेनियस फैट एमल्शन इंट्रालिपिड दे सकते हैं लिपोफिलिक कार्डियो टॉक्सिक ड्रग्स के केस में 200 mg 20% सोल्यूशन। इसके अलावा डेबिगेट्रॉन जो है वो एक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, फिब्रिनोलिटिक एजेंट है। इसका जो एंटीडोट है इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट आइडारक्यूमेज़ैब, जिसका ब्रांड प्रेग्जिवेंट है। 5 mg आईवी देते हैं हम इसको। ल्यूकोवरीन, इट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन द कोर्स ऑफ द मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, आईवी देते हैं 200 mg। इसके अलावा ल्यूकोवरीन जो है वो हम आईवी ही मोस्टली देते हैं। और ये मोस्टली किन पेशेंट्स को देते हैं? You have to write in the comment section ल्यूकोवरीन किन पेशेंट को एंटीडोट देते हैं। I will tell after that 15 seconds. Let's wait and till then you can comment in the comment section. ओके, ल्यूकोवरीन जो है वो मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी कब होती है? पेशेंट्स जो कि एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जिनका चल रहा होता है उनको ल्यूकोवरीन देते हैं जरूर। जब भी हम उनको साथ मेथोट्रेक्सेट लगा रहे होते हैं तो उनको एज एंटीडोट हम ल्यूकोवरीन भी देते हैं। सो एक्चुअली ल्यूकोवरीन की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम साथ मेथोट्रेक्सेट के एज एंटीडोट हम उसको ल्यूकोवरीन भी देते हैं। प्राइडोक्साइम HCl, विटामिन B12, आइसोनियाजिड जो एंटी टीबी ड्रग ले रहे होते हैं पेशेंट को वो देते हैं आईवी 8 ग्राम। थायमीन हम पेशेंट को देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल आईवी 80। थाइलियम पॉइजनिंग कंडीशन में हम जो है ये एक मेटल पॉइजनिंग है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हो सकता है, उसमें हम प्रोसिन ब्लू देते हैं। हाइड्रो, यानी अगर पेशेंट जहाँ पे थाइलियम का कुछ भी चल रहा है तो वहां पे उसका एंटीडोट प्रोसियम ब्लू जरूर होना चाहिए। अब जाहिर है थैलेम इज नॉट वेरी कॉमन, बट जहाँ भी थैलियम का काम चल रहा है वहां पे इसका एंटीडोट शुड बी अवेलेबल।
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फ्लोराइड सॉल्ट एक्सैलिक एसिड, उसका है कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकनेट, मिथाइलिन क्लोराइड, कार्बोमेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में ऑक्सीजन, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यानी हाई प्रेशर ऑक्सीजन हम देंगे, एंड इन द केस ऑफ द बोचुलिज्म टॉक्सिन हम उसको बोचुलिज्म एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो है एंटीडोट्स ड्रग्स एंड देयर टॉक्सिसिटीज जो है वो खत्म होती हैं। आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू and who have find this lecture quite informative. Don't forget to mark your attendance in the comment section by answering the question in the comment section. Don't answer the question in the live chat, otherwise your attendance will be not marked. So comment section में अपने name के साथ answer करें इस सवाल का to get qualified for the certificates, because it's totally free and we are not getting paid for this lecture. So you have to make sure to mark your attendance in the comment section. Kindly subscribe to my channel, Akshay Pharmacist Maryam. You can also follow me on the Facebook. My Facebook page name is Akshay Pharmacist Maryam, and you can also join my pharmacist community WhatsApp group. The link is in the description. Subscribe my channel and share this to your pharmacist community. Thank you so much for listening. Allah Hafiz. Goodbye.